Morning students, I am Xi. Welcomes in BBN online classes, and we were reading chapter number 7, that is Ivan's tries O level. So in this chapter we had discussed about that a prisoner of Oxford prison was there whose name was James Roderick Evans, and he was actually successfully broke the prison 3 times. And then we talked about the governor and the prisoner officer Mr. Jackson and Mr. Stephen, who were actually very much they actually shared very warm relationships between each other, Evans and Jackson Stephen. And Jackson even didn't like Evans, but this time Evans, he got the opportunity to read O level German language, and he was also taking night classes from his teacher. And now actually he wanted to qualify for the exam, and that is why governor and the secretary of the examination board, they were planning, or we can say they were actually doing the planning for the arrangements of holding his exam. Okay, so let's see what happens. And actually both the Jackson and the Stephen, they were actually instructed by the governor that not a sharp single instrument should be there in the Evans prison. Okay, so let's see what happens next. You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. So उसको बोलते हैं कि हाफ एन आवर है, उसके बाद में तुम्हारा जो स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, तो तुम ये जल्दी से तुम्हारा जो भी काम करना है वो कर लो. उसके बाद में रेडी होने के बाद ये जो अपना गंदा सा हैट है ना, वो भी तुम हटा देना. Me at her. Evans put his right hand lovingly on the top of his filthy woolen and smiled sadly. Don't you know, Mr. Jackson, it's the only thing that ever brought me any sort of luck in life. Kind to lucky charm, if you know what I mean. And today I thought, well, with me exam and all that. So वो अपनी वुलन की जो हैट है उसके ऊपर हाथ लगा के बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पता नहीं है कि ये तो मेरा लकी चार्म है, इसको मैं हटा ही नहीं सकता बिल्कुल भी, और आज तो मेरा एग्ज़ाम है तो मैं बिल्कुल नहीं हटा पाऊँगा. सो द थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी the thing is actually related to the mystery of the chapter. अब इवांस ने अपनी जो हैट है वो नहीं हटाई है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री छुपी हुई है कि बाद में एक्चुअली इसका क्या रिलेशन है उसका एस्केप होने से. तो ये कनेक्टेड है सारी स्टोरी, उसका हर एक एक्शन जो है वो कनेक्टेड है. दैट इज़ अ मिस्टीरियस थिंग. ओके, buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. अब जैसे ही उसने जैक्सन को उसकी बात को डिनाई किया तो जैक्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा एंगर शो हुआ, और उसे पता था इवांस को कि अगर मैं मना करूँगा तो जैक्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है. जस्ट दिस वंस दैन शोरली टेम्पल. इफ देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथड अबाउट इवेंट्स, इट वॉज हिज लॉन्ग वेवी हेयर एंड गेट्स शेविंग. सो एक्चुअली मतलब सबसे अच्छा जो अपन कह सकते हैं कि इवांस को के बारे में अच्छा लगा जैक्सन को, वो ये था कि उसके जो बड़े बड़े लॉन्ग हेयर हैं वो अब कटने वाले हैं, उसका शेव्ड होने वाला है. At 8:45 the same morning, the Reverend Stott McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly toward Carfax. So 8:45 को उसी सेम मॉर्निंग में, Reverend मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, सो रिस्पेक्टफुल स्टॉट मैकलेरी जो इन्विजिलेटर के रूप में, अब वो ब्रॉड स्ट्रीट में उनका फ्लैट है एक, और वो वहाँ से इन्विजिलेटर के रूप में इवांस का एग्ज़ाम लेने आ रहे हैं. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow-crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier, but now spotted the thick lenses of his spectacles. अब weatherman ने report किया था टेम्परेचर के बारे में कि अर्ली जून का जो नॉर्मल का टेम्परेचर है वो मतलब नॉर्मल से कम ही रहेगा, मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है. तो जो
ड्रिजल मतलब क्या होता है, शावर, है ना। जो मैकलेरी है उसने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ है और एक क्लैरिकल सी हैट पहनी हुई है, जिस तरह से पुजारी पहनते हैं उस तरह की एक हैट पहनी हुई है। और हाफ एन आवर पहले ही उसने देखा कि ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो उसने बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स लगाए हुए, ग्लासेस लगाए हुए, उनके ऊपर जो है वो पानी की बूंदें आ रही हैं। In his right hand he was carrying a small brown suitcase, और उसके राइट हैंड में एक स्मॉल छोटा सा ब्राउन कलर का सूटकेस है, which contained all that he would need for his morning duties. So उसमें वो सारे सामान है जो कि उसको मॉर्निंग ड्यूटीज़ के लिए चाहिए, including a sealed question paper. ये this is a very important thing. The question might come that what were the things that were actually found in the small brown suitcase of McClary. So what were the things? Sealed question paper envelope, a yellow investigation form, a special authentication card from examination board, a paper, a bible, current copy of the church times. ठीक है, तो क्या क्या था? एक तो सील्ड क्वेश्चन पेपर था, उसका इन्वेस्टिगेशन फॉर्म था, कुछ एक ऑथेंटिकेशन मीन्स आइडेंटिटी कार्ड्स थे उसके, एक पेपर नाइफ था, एक बाइबल थी और एक न्यूज़पेपर था जिसकी करंट कॉपी थी, और उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? द चर्च टाइम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके ब्राउन कलर के सूटकेस में थी। The 2-hour explanation was scheduled to start at 9:15 AM. 2 घंटे का एग्ज़ाम होना था और 9:15 से वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने लग गया। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and sat of them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and the other, a distempered stone wall. अब Evans जो है उसका फेस डोर के सामने रखा गया। स्टीफन वहाँ पे 2 छोटी छोटी से स्मॉल स्क्वायर टेबल लाता है और उनको एक के सामने एक रख देता है। वो जगह बहुत छोटी सी नैरो प्लेस थी, नैरो स्पेस थी, और एक तरफ तो स्टोन की वॉल है और एक तरफ सामने की तरफ दरवाज़ा। मतलब इवांस कहाँ बैठा है? जहाँ सामने की तरफ डोर है। और मैकलरी कहाँ बैठा है? जहाँ उसके पीछे क्या है? मैकलरी जो है वो किसकी तरफ फेस करके बैठा है? एक डिस्टेम्पर वॉल की तरफ। ठीक है, तो इवांस को दरवाज़ा आसानी से दिख रहा है। नेक्स्ट स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर। उसके बाद स्टीफन 2 चेयर भी लेकर आया। द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर। और उसके बाद में उस चेयर के पास में उसने टेबल्स के पास में चेयर भी उसने सेट कर दी। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी। अब वो जिस तरह से इवांस जो है कुछ हरकतें कर रहा है, उससे घूर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, और मुंह बना रहा है। लैथरिंग हिज फेस मतलब क्या होता है? अलग अलग फेसेस बनाना, अलग अलग एक्सप्रेशंस देना। तो वो अपने अलग अलग फेस बना रहा है ये सारी अरेंजमेंट देखकर। तो जैक्सन उसे डांट के बोलता है कि बिहेव योरसेल्फ लैडी। व्हाट इज़ लैडी? लैडी मतलब क्या होता है? बॉय। ठीक है, सो उसको बोल रहे हैं कि बॉय यू प्लीज बिहेव योरसेल्फ। Evans turned and nodded. Evans because Jackson और Evans they shared very warm relationships ना, very warm enemies they were. So हम कह सकते हैं कि जो जैक्सन था वो भी उसको पसंद नहीं करता था, और Evans कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करता जो जैक्सन को ही पसंद ना, उसे इग्नोर करना उसे ज़्यादा पसंद था। तो Evans टर्न होता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है, नॉट करता है। And these Jackson pointed to pen-ups of damn down anyway, a minister isn't it, the chap coming to sit in, I mean. So Evans बोलता है कि मैं ये सब एक्चुअली कैसे, कोई मिनिस्टर आ रहा है क्या? इतना सारा अरेंजमेंट हो रहा है, अच्छा जो मैन आ रहा है वो यहाँ पर बैठेगा मेरे साथ में। एंड हाउ डिड यू नो दैट? आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। सो जैक्सन ने पूछा, आप तुम्हें कैसे मालूम कि ये दोनों अरेंजमेंट किसके लिए हुए हैं? When I got to sign some forms, didn't I? And I couldn't help. तो उसने बोला कि हाँ मुझे तो कुछ साइन भी करने होंगे ना, कुछ फॉर्म्स, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी डॉक्यूमेंट्स में, और आपको पता है कि मुझे इतना कुछ आता नहीं, तो मुझे कोई हेल्प करवाने वाला तो चाहिए ना। तो मे बी जो इन्विजिलेटर है वो मेरे सामने आके बैठेगा। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. So जो झाग है वाइट कलर का, उससे वो जब शेव कर रहा है तो उसने बड़ा स्मूथली लेफ्ट अपने चीक पर शेव करा है, और उसका जो फेस है उस पर बहुत वाइट कलर का फ्रोथ या झाग नज़र आ रहा है।
Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in the cell? He nodded his head vaguely to point out above the door. अब वो जैक्सन से पूछ रहा है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? Why they have to budge me? Budge means किसी को परेशान करना, नैग करना, है ना, बॉदर करना. तो वो मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं इस सेल के अंदर? क्या मतलब है ना? और उसने इस डोर की तरफ नॉट मतलब स्ट्रॉन्गली पॉइंट आउट करके बताया कि डोर भी सारे बंद कर दिए गए हैं और मुझे इतनी सिक्योरिटी में रखा गया है, कोई रेज़र मेरे पास नहीं रहने देना है, कोई नील कटर नहीं रहने देना. सो इतना मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है? नॉट अ वेरी नीट जॉब, कंसीडर्ड जैक्सन. दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई आउट. सो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमारा एक जॉब है जो हम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं. तो उनको क्या लगता है कि जो है मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, इसीलिए इतना प्रिकॉशंस रख रखा है. दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, नो बडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू. सो कोई भी कोई चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस बार कोई नहीं चाहता कि इवांस तुम जेल तोड़कर जाओ, तो तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं लेना चाहता है. Who is going to listen in? I will tell you who is going to listen in, lady. It is the governor himself. See, तो जो एक्चुअली वो अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक रिसीवर भी लगा दिया है वहाँ पर, जिससे कि इवांस की आवाज़ तक सुन पाई जा सके. एक कैमरा लगा दिया गया है. तो एक्चुअली वो ये बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्यों लगाई गई, इतना आपने क्यों सिक्योरिटी कर रखी है, तो मुझे कौन सुनने वाला है? तो जैक्सन बोलते हैं कि जो गवर्नर है वो खुद तुम्हें सुनेंगे और खुद तुम्हें देखेंगे. मतलब इस बार हम कोई भी जो है लीनियंसी नहीं बरतना चाहते, और गवर्नर खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो तुम्हें इस बार कोई भी चांस नहीं देना चाहते भागने के लिए. तो वो तुम्हारे रूम पर पूरी अच्छे से वॉच रखेंगे. ही डोंट ट्रस्ट यू ब्लडी इंच, वो तुम पर एक इंच में विश्वास नहीं करते. नॉर डू आई, और मैं भी नहीं करता. आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, और मैं तो एक हॉक की तरह, जैसे हॉक की जो मतलब पैनी नज़र होती है, तो वैसे ही मैं पैनी नज़र से तुम्हें वॉच करता रहूँगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगा. इवन सो कीप योर नोज क्लियर. ही वॉक टूवर्ड्स द डोर. तो तुम अपनी मतलब हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब तुम सांस भी लोगे ना, वो भी हमें पता चलेगा. नोज क्लीन योर नोज मीन्स तुम जो सांस लेने की एक्टिविटी भी होगी ना, वो भी हम तक पहुंचेगी, वो भी हम ध्यान रखेंगे उसका. और वो ये कहकर डोर तक चला जाता है. Evans nodded. He would already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neated folded square of the off-white linen. So Evans ने अपना सिर हिलाया और देखा कि टेबल के ऊपर 2 वाइट कलर के linen cloths पड़े हुए हैं. Just one more thing, Einstein. Yeah, what's that? Good luck, old son. So जैक्सन जाते हुए उसे बोलता है एक और चीज़ है आइंस्टीन. अब उसे आइंस्टीन क्यों बोल रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली वो पढ़ाई के लिए क्वालिफिकेशन दे रहा है, कुछ एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहा है, जिसका वो अच्छे से जानते थे कि उसके लिए पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी वो एस्केप करने के लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर रहा है. तो उसे आइंस्टीन कह के वो चढ़ाते हैं, मॉक करते हैं और बोलते हैं गुड लक ओल्ड सन. ओल्ड सन क्या मतलब? जो काफ़ी टाइम से इस घर में रह रहा है, तो एक बहुत नोन पर्सनालिटी है वो, मतलब घर यानी जेल में रह रहा है और काफ़ी टाइम से रह रहा है, इसलिए उसे ओल्ड सन बोला गया है यहाँ पे. तो उसे गुड लक बोलता है एग्ज़ाम के लिए और फिर वहाँ से चला जाता है. ओके, नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है. सो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.